ہماری ریاست میں جو بھی اندیخے خدا کی عبادت کرے اسے عبرت کا نشان بنا دو۔ حضور، کچھ جوان ہیں جو آپ کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں، ان جوانوں کو پکڑ کر ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ یہی کہیں ہوں گے، جلدی کرو بنا۔ جلدی چلو، وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ اس دور کا شہر باہر سے طاقتور، اندر سے ظالم تھا۔ بلند دیواریں، بڑے محل اور رونق سے بھرے بازار، لیکن ان سب کے نیچے ایک ایسی فضا تھی جہاں سوچنا جرم تھا اور سچ بولنا موت۔ اس شہر کا بادشاہ صرف حکمران نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے صرف مانیں نہیں بلکہ اسے پوجیں۔ اس کا قانون سیدھا تھا، جو میرے آگے جھکے گا زندہ رہے گا، جو انکار کرے گا مٹا دیا جائے گا۔ لوگ جی رہے تھے لیکن ڈر کے ساتھ، سانس لے رہے تھے لیکن اجازت کے ساتھ۔ اور اسی شہر میں کچھ جوان پیدا ہوئے، جوانی جن کے چہروں پر تھی اور سوچ جن کے دل میں۔ یہ جوان عام نہیں تھے، کوئی امیر گھر کا تھا، کوئی طاقت کے قریب تھا، کوئی بادشاہی نظام کا حصہ بن سکتا تھا، لیکن ان سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، جو سچ ہے کیا ہم اسے صرف اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ جھوٹ زیادہ طاقتور ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، زمین پر جھکنے سے انکار کیا، اور دل ہی دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ رب صرف ایک ہے۔ یہ یقین ان کے لیے رحمت بھی تھا اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ بات ظاہر ہو گئی تو ان کا انجام لکھا جا چکا ہے، اس لیے وہ چپ رہے، خاموشی اختیار کی۔ لیکن خاموشی میں بھی ان کا ایمان چیخ رہا تھا۔ وہ اکثر چپ چاپ ملتے، اندھیروں میں بات کرتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہی سوال دیکھتے، کب تک ہم ڈر کے ساتھ جیتے رہیں گے؟ کب تک ہم سچ کو دل میں دفن رکھیں گے؟ کب تک ہم جھوٹ کے شہر میں رہ کر خود کو زندہ سمجھیں گے؟ اور پھر وہ دن آیا جب خاموشی بوجھ بن گئی، جب ایمان نے فیصلہ مانگ لیا۔ کفر کرنے سے بہتر ہے ہم یا تو اپنی جان قربان کر دیں یا یہ شہر چھوڑ دیں۔ یہ فیصلہ تلوار کا نہیں تھا، یہ فیصلہ نعرہ لگانے کا نہیں تھا، یہ فیصلہ صرف اتنا تھا، یہاں سے نکل جانا، شہر چھوڑ دینا، ظلم سے دور چلے جانا اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دینا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہے، بس اتنا پتا تھا کہ پیچھے رہنا اب ممکن نہیں۔ یہیں سے کہانی موڑ لیتی ہے، یہیں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو صرف جگہ کا نہیں بلکہ وقت کا بھی سفر ہے۔ اور اب رات قریب آ رہی ہے، شہر سونے والا ہے اور سچ شہر چھوڑنے والا ہے۔ اسی رات کچھ قدم اٹھنے والے تھے، ایسے قدم جو شہر کے لیے بے آواز تھے لیکن تاریخ کے لیے گونج بننے والے تھے۔ وہ جوان جو دن بھر عام لوگوں کی طرح جیتے تھے، آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شہر چھوڑنا صرف جگہ چھوڑنا نہیں ہوتا، شہر چھوڑنا مطلب اپنی پہچان چھوڑنا ہوتا ہے، اپنا نام چھوڑنا ہوتا ہے، اپنا مستقبل چھوڑنا ہوتا ہے۔ مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ایمان زندہ رہ جائے تو مستقبل اللہ خود لکھتا ہے۔ رات گہری ہوتی چلی گئی اور شہر کی گلیوں میں صرف ہوا کی آواز رہ گئی۔ انہوں نے اپنے قدم آہستہ رکھے، جیسے زمین بھی راز میں شریک ہو، جیسے ہر پتھر جانتا ہو کہ آج ظلم کے شہر سے سچ روانہ ہو رہا ہے۔ کوئی پیچھے نہیں دیکھتا، کوئی رک کر نہیں سوچتا، ہر دل میں ڈر ہے، لیکن اس ڈر سے زیادہ یقین، اور اسی یقین کے ساتھ ان کے ساتھ ایک اور مخلوق بھی چل رہی تھی، ایک کتا۔
जो न बोलता था न सवाल करता था, लेकिन अपनी मौजूदगी से इस सफ़र को मुकम्मल बना रहा था। जैसे फितरत खुद गवाह बन रही हो कि ये सफ़र सिर्फ इंसानों का नहीं। शहर धीरे धीरे पीछे छूट गया, बुलंद दीवारें धुंधली होती चली गईं, और फिर वो लम्हा आया जब पीछे सिर्फ अंधेरा रह गया। आगे पहाड़ों का सन्नाटा था। सफ़र आसान नहीं था, रास्ते पथरीले थे, पांव थक चुके थे, सांस तेज हो रही थी, मगर किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के लिए चलता है तो थकन भी इबादत बन जाती है। वो चलते रहे और फिर उनकी नज़र एक जगह पर जा टिकी, एक गार। न कोई रोशनी, न कोई आवाज़, न कोई निशान कि यहाँ जिंदगी कभी आई हो, बस पत्थर और खामोशी। वो रुक गए। इस गार को देखकर किसी ने कहा नहीं कि यही हमारा बचाव है, लेकिन सब ने महसूस किया कि यही वो जगह है जहां दुनिया खत्म होती है और उतवा पर भरोसा शुरू होता है। वो गार के करीब आए और जैसे ही अंधेरा उन्हें अपनी लपेट में लेने लगा, शहर का खौफ पीछे रह गया। इस लम्हे उन्होंने पलटकर नहीं देखा, इसलिए कि जो पीछे छोड़ दिया जाए उसे दोबारा देखना यकीन को कमज़ोर कर देता है। उन्होंने गार के अंदर कदम रखा और इसी कदम के साथ वो सिर्फ शहर से नहीं निकले, वो वक्त के एक दौर से भी निकल गए। अब वो गार के अंदर हैं। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है और अंदर एक ऐसी खामोशी है जो किसी तूफान का आगाज लगती है। गार के अंदर न कोई चिराग था, न कोई आवाज़, न कोई तसल्ली देने वाली चीज़, सिर्फ पत्थर और सांस की हल्की आवाज़। बाहर रात अपनी जगह कायम थी, लेकिन गार के अंदर रात और दिन का फ़र्क मिट चुका था। ये जवान जो शहर के शोर से भागकर आए थे, अब एक ऐसी खामोशी में थे जहां सिर्फ दिल बोल रहा था। किसी ने कहा नहीं कि हम बच गए, किसी ने यह दावा नहीं किया कि अब कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि असल बचाव गार नहीं होता, बल्कि असल बचाव अल्लाह की रहमत होता है। इसी एहसास के साथ उन्होंने अपने हाथ उठाए। ये कोई लंबी दुआ नहीं थी, ये अल्फाज का बोझ नहीं था, ये सिर्फ यकीन की आवाज़ थी। ऐ हमारे रब, हमने अपनी कौम को छोड़ दिया, हमने अपना शहर छोड़ दिया, हमने अपनी पहचान छोड़ दी। अब हमें अपनी रहमत में ले ले और हमारे लिए इस मामले में सही रास्ता निकाल दे। ये दुआ सिर्फ इस रात के लिए नहीं थी, बल्कि सदियों के लिए थी। और फिर वो लेट गए। थकन जिस्म पर हावी हो चुकी थी, आंखें बोझल थीं, मगर नींद आने से पहले भी दिल मुतमईन था। ये वो सुकून था जो सिर्फ तब मिलता है जब इंसान अपना फैसला अल्लाह के हवाले कर देता है। और जैसे ही आंखें बंद हुईं, वक्त ने चलना छोड़ दिया। सूरज उगा, फिर ढल गया, फिर दोबारा उगा और फिर ढल गया, लेकिन गार के अंदर न कोई सुबह हुई न कोई शाम आई। अल्लाह ने अपना हुक्म जारी कर दिया। सूरज को कहा गया कि अपनी रोशनी सीधी न डालना, हवा को कहा ही गया कि जिस्म को नुकसान ना पहुंचाना, और जिस्म को कहा गया कि ज़मीन से ज़्यादा चिपकना नहीं। वो करवट बदलते रहे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ताकि मौत उन्हें छू ना सके। और वक्त गार के बाहर बहता रहा। शहर बदलते गए। जालिम बादशाह कब्र में चला गया, उसका नाम सिर्फ तारीख के सफ़ों में रह गया। उसके बाद और लोग आए और वो भी चले गए। लोगों के अकीदे बदलते रहे, नस्लें पैदा होती रहीं, नस्लें ख़त्म होती रहीं, मगर गार के अंदर सब कुछ वही का वही था। 300 साल और उससे भी ज़्यादा। न जिस्म बूढ़ा हुआ, न चेहरा बदला, न वक्त का कोई निशान। ये नींद आम नींद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐलान थी, ताकि जब आंखें खुले तो दुनिया जान ले कि जिंदगी और मौत का फैसला इंसान नहीं करता। और फिर एक दिन वक्त को इजाज़त मिली। खामोशी में हल्की सी हरकत हुई, सांस जरा गहरी हो गई और फिर एक आंख खुली। उस आंख के खुलने के साथ सिर्फ एक शख्स नहीं जागा, बल्कि तारीख जाग उठी। उसने उधर देखा, उधर देखा। गार वही था,
पत्थर वही थे। उसने कहा, हम कितनी देर सोए? शायद एक दिन, या शायद उससे भी कम है। यह जुमला इंसानी सोच की हद था और अल्लाह की कुदरत का मुकाबला। उन्हें भूख महसूस हुई। ये भूख सिर्फ जिस्म की नहीं थी बल्कि दुनिया से रब्त की थी। फैसला हुआ कि कोई शहर जाकर खाना लाए। ये लो, खाने के लिए कुछ ले आओ। एहतियत से जाना, किसी को खबर ना होने पाए। उन्होंने सिक्के निकाले, पुराने सिक्के, उस दौर के सिक्के जो उनके लिए बिल्कुल नई बात नहीं थे। वो जवान गार से निकला और जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वक्त ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। शहर करीब था लेकिन दुनिया बहुत दूर जा चुकी थी और जो होने वाला था वो सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी थी। ये सिक्का तो सदियों पुराना है। ये तुम्हारे पास कहां से आया? लगता है तुम्हें कोई पुराना खजाना मिल गया है। ऐसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले जाते हैं। चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ। हुजूर, हमें इस जवान के पास से एक पुराना सिक्का मिला है। इस सिक्के की जांच की जाए। यह सिक्का 300 साल से भी ज्यादा पुराना है हुजूर। यह दकियानूस के वक्त का है। इसका मतलब ये उन अजीम जवानों में से एक है जिन्होंने अपने दीन के लिए अपना शहर छोड़ दिया था। ये सच्चे खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बेशक हक की जीत होती है। वो जवान गार से निकला था लेकिन जो वापस लाया वो सिर्फ खबर नहीं थी बल्कि वक्त की सच्चाई थी। शहर बदल चुका था, लोग बदल चुके थे और वो दूर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी कब का खत्म हो चुका था। जब लोग गार के करीब पहुंचे तो उन्हें किसी दलील की जरूरत नहीं पड़ी। सब कुछ सामने था। यह अल्लाह की कुदरत थी और उस कुदरत को समझने के लिए किसी और वजाहत की जरूरत नहीं। जब पैगाम पूरा हो गया, जब सच हर दिल तक पहुंच गया, तो अल्लाह ने अपने बंदों को इस दुनिया का बोझ नहीं बनने दिया। उन्हें खामोशी के साथ, इज्जत के साथ अपनी तरफ बुला लिया। जार फिर से बंद हो गया, पत्थर वही रहे, खामोशी वापस आ गई। लेकिन अब यह सिर्फ खामोशी नहीं थी, उस खामोशी में एक कहानी थी, एक निशानी थी और एक पैगाम था कि जब कोई अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। हो सकता है दुनिया उसका नाम भूल जाए, हो सकता है लोग उसकी कुर्बानी को समझ ना पाए, लेकिन अल्लाह याद रखता है और जब अल्लाह याद रखे तो वक्त भी उसे भूल नहीं सकता। असहाबे कहफ की कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर जो बात ये कहानी छोड़ जाती है वो हमेशा जिंदा रहे। सच के लिए खड़ा हो जाना आसान नहीं होता। अक्सर रास्ते अकेले होते हैं और कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो फिर फैसला चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर सदियों तक रहता है। ये कहानी उन लोगों की है जो चुपचाप चल दिए लेकिन दुनिया को जगा गए। और शायद ये कहानी आज भी हमसे वही सवाल पूछ रही है, अगर हक के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ जाए तो क्या हम तैयार हैं?